हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका इंडियन एंजल्स में। आज एंजल्स के सामने होंगे 3 इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर फाउंडर्स। फ्रॉम होम सॉल्यूशंस टू रिसाइकल टायर्स एंड अ सेफ्टी डिवाइस फॉर वुमेन। आज के पहले पिक्चर है इरशाद भट्ट, जिनका प्रोडक्ट आपकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को करता है एलिवेट। It will help us scale definitely because we are already present across India and investors backing us through knowledge. I hope Hesios as a brand takes away as much as learning and value from these opportunities that has been provided over here. I'm equally excited to meet the investors as well. Namaste Angels. नमस्ते। हम अपनी रोजाना जिंदगी में स्मार्ट प्रोडक्ट्स का काफी इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमारे स्मार्टफोन हो। इन सब चीजों ने हमारी जिंदगी को जीना काफी आसान बना दिया है। They send us notification, they send us alarms. But what about our homes? Homes have been modernized in design, in aesthetics. But what about the technological improvement in them? Nothing has gone ahead. That is the answer. Hesios. Hesios products are completely retrofit in nature, wireless in technology, and the state-of-art technology and hardware helps you to control your light, fan, ACs, and also get number of notification about intrusion alarm, gas leak detection, fire alarm detection on your mobile phone from anywhere in the world. Hesios is very proud to say that we have completed around 1100 installation in 10th month of our operation, and we are thinking to take it ahead. Angels, I would request you to come and join me in this journey. I, Irshad Bhatt, the founder, is here to ask for 1.6 crore against 5% of equity. बहुत ही काम और फोकस्ड पिच की है इरशाद ने। उनका प्रॉमिस है मिनिमल डिसरप्शन से आपका होम ऑटोमेट कर देना। पर क्या हमारे एंजल्स उनकी हाई वैल्यूएशन को एक्सेप्ट करेंगे? Hesios नाम कहाँ से आया? Sir, basically the name itself defines light. Helios is the god of sun in Greek mythology. Se is Selene, that is moon. And Oas is the mother of both. So Hesios. So that's the reason it is called lighting ahead. तो ये पूरा टेक्नोलॉजी आपने खुद से डेवलप किया है या कहाँ से एक्वायर किया है? नहीं. So we have our in-house team which is creating the technology and the product. आपके इन-हाउस टीम का R&D टीम कितना बड़ा है? और They are currently 4 people. और क्या कॉस्ट रहेगी? सपोज मेरा बेडरूम या मेरा ऑफिस मुझे ऑटोमेट करना है फॉर लाइट्स, AC, whatever you have. We have offering. I've done a 2 BHK in Rewari, as in it as Rewari, for around 8,000, and I've done same 2 BHK at Kanjurmarg, Runwal Bliss for around 35,000. I'm doing the same 2 BHK in Worli for around 14 lakh rupees. So the solution design plays a very critical role in the offering. मेरा घर है 2 बेडरूम का। जी। मैंने आपको बोला कि मेरे को पूरा घर एंड टू एंड ऑटोमेट करना है, जी। तो उसमें आप पैसे कैसे कमाएंगे, एक बार वो समझाएं। जी, और मैं- किस सेगमेंट में कैसे कमाएंगे? Absolutely, sir. Thank you. So first is my hardware cost. That is a static cost that gets billed to you. Then there is installation commissioning cost that is there. So that is the cost, the A, B, C factor that gets summed up and taxes are top loaded on. हार्डवेयर पे आपका मार्जिन कितना होता है? 57%. 57% Yeah. मार्जिन है। So if I'm selling you something, I'm keeping a markup of around 80%. 80 Whatever I do a sale of. तो मेरी ये जर्नी काफी लर्निंग के बाद शुरू हुई है सर। I have a reputation in market. I close sales sitting in Pune. मैं जानना चाहूंगा आप हो कहाँ से, आपके परिवार में कौन है, और आपने कैसे सोचा एक कंपनी स्टार्ट करने का? एक बार वो समझा देंगे मैं तो और अच्छा लगेगा। So I started my journey with home automation. Okay, so after that I joined a company called Falcon Control System. I joined in as a sales executive and I went on to become VP sales. During COVID, certain things didn't work between us. The vision was not aligned. So I took a step back and I resigned from the company. I've done a project called Supernova in Noida Sector 94. वो भी project मैंने किया है. I'm doing ATS Happy Trail. That is India's biggest home automation project. Executed till date of 819 flats has been done by me. ऑटोमेशन मैंने अपने घर का करवाया है। जी yes. और मुझे पता है कि वो आपको पूरी वायरिंग चेंज करनी पड़ती है, जो ट्रेडिशनल ऑटोमेशन। जी। तो आप अभी तक ये क्यों नहीं बता रहे हो कि विद दिस यू आर ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ ऑटोमेशन ड्रास्टिकली, व्हिच ट्रेडिशनली यूज्ड टू बी अ वेरी हाई कॉस्ट? बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आता जी। हूँ। जब मैं 16 साल का था तो मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दी थी। Wow. तो मैं उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आज की डेट में साइबर थ्रेट बहुत ही बड़ा थ्रेट है जी। इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। जी। तो आप कैसे डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी थ्रेट्स को जी। आप मिटिगेट करते हैं? So we come with 256-bit encryption coded on our product.
and we have dual verification system. Once you do a sign up process, you receive two kinds of OTP. One is your cellular OTP and one is your OTP that you receive on the mail. And once you sign up and configure the products are attached to that particular ID. एंजल्स हेसियोस के प्रोडक्ट्स और अप्रोच से काफी इम्प्रेस्ड है, पर अब अंकित प्रोडक्ट से हटकर हेसियोस के फाइनेंसेस और यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। आपको आपके धंधे के बारे में मालूम है, मैं अभी भी यूनिट इकोनॉमिक्स पे अटका हुआ। आपने बहुत स्मार्टली, अच्छे सेल्समैन हो, मूव कर दिया टॉपिक, है ना। तो आप 54% ग्रॉस मार्जिन पे काम करते हो, है ना। आपका कितना रेवेन्यू हार्डवेयर सेल से आ रहा है अभी, और कितना रेवेन्यू आपका सॉफ्टवेयर सेल से आता है? Last 5 months we did from October to March we did around 89 lakhs. और सॉफ्टवेयर में अभी हमारा डायरेक्ट क्लाइंट होम ऑटोमेशन, होम यूजर है, तो इसके वजह से हम उनसे डायरेक्ट कॉस्ट अभी ऐप की चार्ज नहीं कर रहे, बिकॉज आपने बोला ना इम्प्लीमेंटेशन फी चार्ज करते हो। हाँ, तो इंस्टॉलेशन द फीस ऑफ इंस्टॉलेशन इज 10% of whatever turnover we are categorizing. So if I tell you there is 1.88 crore that we have clicked till date, 18 lakhs would be the installation and 18 लाख। अभी जो आप इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहते हो तो उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे? for team and marketing, because we want to set up our foot into B2C and D2C markets. कोई बड़ी पिक्चर आप हमें दिखाओ, क्योंकि अभी तक मैं कन्विंस नहीं हो पाया हूँ जी कि मैं आपके बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करूँ। I'll just like to give answer in this way that I have done all the hard work for building the hardware, for getting the product, for getting the team, the core team ready, for getting the market and initial testing done. Any of us who joins me comes with the knowledge and the money, will come as a launch pad, and we'll togetherly grow, and we will do 100% a turnover of around 800 to 900 crores in coming 4-5 years. तो इरशाद के आंसर्स से रिकांत उतना कन्विंस नहीं हो पाए हैं, पर अंकित अब तक के जवाबों से खुश हैं और लगता है उन्होंने अपना मन बना लिया। एज अ फाउंडर मेरा मानना है कि असली फाउंडर वो होता है जिसमें जिगर होता है, ठीक है। मैं बंदे पे पैसा लगाता हूँ, मेरा मानना है कि अगर बंदा अच्छा है तो धंधा बना लेता है। थैंक यू। ठीक है, तो पहला बंदा आता है, धंधा बाद में आता है। आई एम विलिंग टू पुट 25 लाख रुपीज एज इक्विटी एंड 25 लाख रुपीज एज डेट आई एम विलिंग टू ऑफर यू एट 9.5%। मैं 12.5 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन बोल रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज देखिए, मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क विच आई विल हैव टू डू। आई कैन ओपन अप द एंटायर नेटवर्क ऑफ होम लेन्स ऑफ द वर्ल्ड एटसेट्रा फॉर यू। आपको बिल्डर नेटवर्क्स चाहिए, होटल नेटवर्क्स चाहिए, दैट आई विल ओपन अप। थैंक यू सो मच। सो इरशाद, मुझे चुप बैठाना मुश्किल होता है, ओके, एंड पूरी पिच में आपने मुझे चुप बैठाया, सो कूडोज टू यू फॉर दैट, बिकॉज आपको सुन के ना मजा आ रहा था, इंटरप्ट करने का मन नहीं कर रहा था। थैंक यू सो मच। लेकिन आपकी भूख बड़ी है, एंड मुझे एस्पिरेशन ही किक देता है, क्योंकि छोटा गेम खेलने में मजा नहीं आता। एंड आई वुड वांट टू बी योर एंजल along with Rikant, and Rikant shall share the offer with you. आपकी पिच सुन के लिटरली कहते हैं ना, मजा आ गया। मतलब you, आपसे इतने क्वेश्चन पूछे गए, आपने बेधड़क क्लैरिटी के साथ में जो आपने अपने आंसर्स दिए ना, लिटरली दिल को छू गए। थैंक यू। मैं ये वर्ड बोलूंगा। मैं और श्रीधा मिलके आपको ऑफर देना चाहते हैं। हम लोग 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट करेंगे जी। देयर इज नो डेट, okay, and but we wanted to take 10% of the company. And we would also like to mention the value add that we bring to the table. So Rikant brings in a whole ecosystem of technology, hospitality, and opens a lot of avenues. So मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ इस प्रोडक्ट को एज अ लाइफस्टाइल पोजीशन करने में, बिकॉज व्हाट यू आर सेलिंग इज एन एक्सपीरियंस, इज एन ईज ऑफ यूज, इज अ लाइफस्टाइल. सो आई कैन रियली हेल्प यू इन दैट. Let's do it together. यार मजा तो मुझे भी आ गया। एक है आपका प्रोडक्ट 100% मेड इन इंडिया है। सेकेंड थिंग यू सेड कि आपका रेपुटेशन है मार्केट में जी। और जो आदमी प्रिंसिपल्स के साथ रेपुटेशन प्रोटेक्ट करने के साथ बढ़ता है वो बहुत आगे जाता है। मेरी ऑफर होगी 40 lakhs फॉर 10% इक्विटी okay, प्लस 25 lakhs एट 10% इंटरेस्ट। okay, I've made a decision too. okay, Actually, I'm very familiar with this space. Okay. And मुझे लगता है this is growing. There'll be more players. I really like you. thank you. I think you have a very strong tech, sales, and you know your product well. But I'm not ready to invest at this point of time. But I think you have 3 great offers. But I can reach out to Absolutely. thank you. You have spent a lot of time in this industry.
Your industry knowledge is outstanding. And I have a very strong belief that you'll be able to build a very, very strong brand around this. So I'll let Ankit. So one, he's going to join me in the deal. He's going to bring with him the entire PR, marketing, branding, machinery which he has along with him. Yeah. दूसरा, मैं अपने ऑफर में मैंने डेट इसलिए डाला बिकॉज मेरे को लगता है एक फाउंडर के लिए इक्विटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. मैं अभी आपका ज्यादा इक्विटी लेना भी नहीं चाहता, इसलिए मैंने वैल्यूएशन भी आपको हाई दिया है. देखो, डेट रेज करना तो बहुत आसान है. आप चाहो तो कहीं से भी डेट रेज कर We सकते can unlock for you. मतलब डेट रेस करना एट व्हाट रेट आसान है, और आप कंपनी के किस स्टेज पे हो, आपका बैलेंस शीट वो सपोर्ट करना चाहिए. आज जिस वैल्यूएशन पे आप फंड रेस करोगे जी. वो डिफाइन करेगा आपका अगला राउंड. नहीं, आप जिस वैल्यूएशन पे आज फंड रेज करोगे और उसके बाद जिस तेजी से बढ़ोगे वो डिटरमिन करेगा कि आपका अगला राउंड किस वैल्यूएशन तो पे फिर रेज भी होगा. बढ़ेंगे. नो, ऑन माय ऑफर यू हैव 30 सेकंड्स, नो थिंकिंग टाइम. हाँ, विद 30 seconds think come back. तो आप डिसाइड करो एंड लेट अस नो. इरशाद is now stuck in the problem of plenty. उनके पास 3 ऑफर्स है टेबल पे. देखना ये होगा कि वो इन ऑफर्स को निगोशिएट कैसे करते हैं. Let's do it. सुपर. अरे वाह. लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू बडी. आखिरी मोमेंट पे काफी क्लिनिकल तरीके से इरशाद ने अंकित और कुणाल के दिए ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट ऑफर्स फ्रॉम 5 इन्वेस्टर्स. आई बिलीव सच काइंड ऑफ वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज मोर in terms it's more than the capital that they've invested, and I always believe that when value is invested it overgrows the money. So that's what has been my learning till date. I think so it paid off till date. I'm hoping that from here we create Hesios becomes a homegrown brand and a brand that represents India in the automation sector. अगर आप भी इरशाद की कंपनी हेसियोस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, then head over to our official website www.indianangels.com. ये आंखें सिर्फ शायरी नहीं है, सिर्फ यादों की डायरी नहीं है. इनमें सिर्फ खूबसूरती का नहीं, ख्याल का काजल भरे. टैक ब्यूटीफाई आयुर्वेदिक काजल. काजल बदलो, नजरिया बदलो. हमारे अगले पिचर है तुषार सोहल का. वो पिच करेंगे उनकी कंपनी रीग्रिप. इन्वायरमेंटलिज्म के बढ़ते मौसम में उन्हें यकीन है कि उनकी रिसाइकलिंग कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि कैसा पिच करना है, क्या करना है, तो वही चल रहा है दिमाग में. बट हैप्पी टू बी हियर. इस स्टेज पे आके आज वी आर अ 2-year-old स्टार्टअप नाउ एज वी आर ऑलरेडी रेजिंग फंड्स. तो ये जो राउंड है इसके अंदर यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. नमस्ते एंजल्स, मेरा नाम तुषार सोहल का है. मैं रीग्रिप का फाउंडर हूँ. क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पुराने टायर्स जो निकलते गाड़ियों से उनका क्या होता है? शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा. एक पुराना टायर पॉल्यूशन क्रिएट करने के अलावा कुछ नहीं करता. हर साल 1.5 बिलियन टायर्स डिस्कार्ड किए जाते हैं, जिसमें से सिर्फ 20% हिस्सा रिसाइकिल हो पाता है. 80% हिस्सा यहीं कहीं एनवायरनमेंट में आज भी एग्जिस्ट कर रहा है लैंडफिल्स के थ्रू. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जुलाई 2021 के अंदर हमने शुरुआत करी थी रीग्रिप की. रीग्रिप जो है वो भारत का पहला री इंजीनियर्ड टायर स्टार्टअप की तरह हमने एक ब्रांड बनाने की कोशिश करी. बेसिकली जो आइडिया था वो ये था कि किस तरीके से हम पुराना टायर ले सकें और उसका एक वापस से रिफर्बिश्ड वर्जन क्रिएट करके इंडिया के मार्केट तक पहुंचा सके. द आइडिया वाज वेरी सिंपल कि हाउ वी कैन यूज सर्कुलर इकोनॉमी और टायर्स को वापस एक नई जान दे सके पुराने टायर्स को यूज करते हुए. तो इसी के साथ में आज हमें 2 साल हो चुके हैं. हमारा जो नेटवर्क है वो तकरीबन 8 स्टेट्स में अवेलेबल है और हम अभी तक जो 2 साल के अंदर हैं वो तकरीबन 8 करोड़ रुपए की सेल्स अचीव कर चुके हैं. इस साल अभी जो हमारी आस्क है वो है 40 लाख रुपए अगेंस्ट 1% ऑफ इक्विटी. थैंक यू सो मच. तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन रखा है तुषार ने. बड़ी प्रॉब्लम का इनोवेटिव सोल्यूशन प्रेजेंट किया उन्होंने रीग्रिप के थ्रू. तो आपको ये नीड कहाँ से फील हुई? कैसे? ये बिल्कुल अनयूजुअल सा बिजनेस है, आप बता रहे हैं भारत में पहला है, तो क्या कोई और मॉडल आपने एक्सपीरियंस करा है आउटसाइड ऑफ द कंट्री एंड आपने क्यों शुरू करा?
मैं इससे पहले आई वॉज वर्किंग विद अनदर स्टार्टअप जो कि टायर के अंदर ही सर्विस में हम करते थे, तो आई वॉज हेडिंग बिजनेस देयर। तो वहाँ पे मेरा रोज ट्रांसपोर्टर से मिलना होता था। तो जब मैं ट्रांसपोर्टर से मिल रहा था तो कोविड आया। तो कोविड के अंदर सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये निकल के आया कि टायर की प्राइसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट 25% इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि टायर और फ्यूल दो ऐसे मेजर कंजप्शन है जो कि उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट का 80% हिस्सा है। तो इस वजह से देवर फेसिंग प्रॉब्लम्स, और उसी टाइम पे चाइनीज टायर्स भी बैन हो गए इंडिया के अंदर। तो ट्रक्स एंड बसेस वालों के लिए ये बहुत बड़ा एक पेन एरिया था। इसी पेन एरिया को सॉल्व करने के लिए जब हमने रिसर्च करी तो मुझे ये आइडिया आया कि देयर इज अनदर प्रॉब्लम विच इज डिस्कार्डेड टायर्स। अब ये पुराने टायर्स इतने इकट्ठे होते जा रहे हैं हर साल, क्योंकि नए टायर्स एड ऑन होते जा रहे हैं और कोई उनका कुछ कर नहीं रहा है। तो ये एक मार्केट जो था वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, जहां पे पुराने टायर्स को रिफर्बिश करके कुछ किया जा सकता है। बट देयर वाज नो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इनटू इट, देयर वाज नो ब्रांड इनटू इट, देयर वाज नो सप्लाई चेन प्रॉपर, जिसके थ्रू आप अगर एक नियरेस्ट डीलर जहां पे आप नया टायर खरीदते हैं वहीं पे आपको एक रिफर्बिश टायर भी मिल पाए। तो वो सोचते हुए हमने दोनों प्रॉब्लम्स को कंबाइन किया और ये रीग्रिप का आइडिया वहां से आया। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं बचपन से, मेरा फैमिली बिजनेस ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। नाउ आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप इन्हीं अनस्ट्रक्चर्ड प्लेयर को नाउ एक नेटवर्क में जोड़ रहे हो to actually create a organized brand, right? So I'll tell you how we're doing. So these resold or trading market which is already there, which you were using, basically it's a service model, right? Where what you do is you take your old tire to them, आप अपना लेकर जाते हैं और वहाँ से वापस वो रीसोल होके आ जाता है। बट हमारे इसमें केस में ये नहीं है। हमारे केस में एक पार्ट प्रोसेसिंग का यही है कि हम इसी तरीके की जो फैसिलिटीज है उनको हम हमारे SOPs देते हैं, जहाँ पे हमारा वो टायर बनाते हैं। फिर हम हमारे डीलर हैं, हमारे खुद के जैसे एक नए टायर कंपनी के डीलर होते हैं वैसे डीलर बने हुए, उन डीलर के थ्रू ट्रांसपोर्टर तक वापस पहुंचता है, जिन ट्रांसपोर्टर्स को री इंजीनियर टायर्स लगते हैं गाड़ियों में। तो कुछ मुश्किल सवालों के बाद बड़े प्रोजेक्शंस बताए हैं तुषार ने। उनका मानना है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस के चलते उनका सेक्टर बड़े लीप्स में ग्रो करेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आपने इसको फिर एसेट लाइट कर दिया है। करेक्ट सर। और इसकी वजह से आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हो अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट में, विच इज अ कंप्लीटली वाइड स्पेस राइट नाउ। What is the entry barrier for your business? मतलब why can't a MRF tomorrow see a lot of value here and say कि यार मैं कर लूँगा? Indian government has introduced EPR into tires, right? So with EPR, extended producer responsibility, every tire manufacturer has to do the disposal by 2025. It is 100% equivalent to their tire manufacturing quantity और production. नया टायर कंपनी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर वो आता है तो उनकी नए टायर की सेल जितना महीना ये टायर यूज कर रहा है कंज्यूमर उतना महीना पुश हो जाएगी, which is their main primary product. क्विकली आपके P&L पे डीप डाइव कर लेते हैं। पिछले साल आप कह रहे हो आपने 3 करोड़ 37 लाख रुपए का हाँ जी रेवेन्यू था। हाँ जी। आपका EBITDA कितना था? प्रॉफिटेबल हो? नहीं सर, अभी नेट पे नेगेटिव है। कितना? सर नेट पे 11% के आसपास। क्यों? सर अभी क्योंकि टीम कॉस्ट है हमारी तो कितना बड़ा? आप तो कहते हैं लीन टीम है आपकी। हाँ सर लीन टीम है, बट अभी जैसे जैसे स्केल करेंगे वैसे वैसे सर एक 0 से लेके 24 तक आए 3 करोड़ 37 लाख रुपए का आपका रेवेन्यू है। हाँ जी। तो उसका ब्रेकअप बताएं नीचे कैसे आते हैं ना। 100 रुपए आपका रेवेन्यू हुआ, फिर उसके बाद आपको टायर खरीदने का कितना खर्चा था? 7.5 रुपए सर। 7.5 रुपया। मार्केटिंग का कितना खर्चा था? सर मार्केटिंग का हमारा अगर हम वैसे देखें तो सर आप मोटा मोटा 1.5 से मतलब आप 10 रुपए के आसपास मान लीजिए, 85 के आसपास हमारा कॉस्ट आ गया मार्केटिंग मिला के। तो 85 रुपया, 15 रुपया बचा। सैलरी का खर्चा कितना है? सैलरी का खर्चा सर 8 से 10 रुपए के आसपास। 7 रुपया बचता है। 7 रुपए में आप रियल स्टेट बाकी खर्चा कर रहे हो। Got it. तो 15% आपका ग्रॉस मार्जिन है अप्रोक्सीमेटली। जी सर, वो लास्ट साल था। इस साल वी विल बी हिटिंग 24% बिकॉज नाउ प्रोक्योरमेंट साइड पे हमने और इस साल अभी कितना रेवेन्यू हो गया? लास्ट 7 में 3 करोड़ कर चुके हैं सर 5 और लास्ट 3 महीने का रेवेन्यू रन रेट बताइए। 72 लाख रुपीस पिछले महीने था, उससे पहले 69 था, उससे पहले 65 था। मोटा मोटी आप कह रहे हो पिछले महीने के हिसाब से आप 8.5 करोड़ के रन रेट पे हो। हाँ जी। और आपके पास स्टेक कितना है कंपनी का भी? 85%। और आपने लास्ट राउंड जिसमें सुनील शेट्टी आए थे, हाँ जी, वो राउंड कितने वैल्यूएशन पे? 20 CR पे, 20 करोड़ पे आपने रेस किया था। और सुनील शेट्टी के अलावा 5%। उसके अलावा और कौन कौन है इन्वेस्टर? There is another investor, Mr. Mahavir Pratap Sharma. He is also having, so he was the first investor who invested into us. So he also owns 10% of the company. आपने बता दिया अपने एक्सपेंसेस के बारे में, आपने अपने रेवेन्यू के बारे में भी बता दिया। अब मैं समझना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप उस इन्वेस्टमेंट का आगे क्या करेंगे? आप कैसे अपनी कंपनी को बड़ा बनाएंगे? आप कैसे उस कंपनी को स्केल करेंगे? अभी आप 2 करोड़ का रेवेन्यू करें, अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो। So इस साल के अंदर सर अगर if I'll talk about our run rate is 8.5 but we will be hitting 12 CR और इस साल के एंड में we will be revenue positive, मतलब basically we will be hitting the break even। इन्वेस्टमेंट्स लेने के बाद में जो भी आपने बताया, अगर आप सारी चीजें इन्वेस्ट कर देते हो प्रॉपर्ली एज पर योर प्लान,
What are your projections for next 5 years? So next year we will be hitting 40 CR. That is what we are building. और अगर हम 5 साल की बात करें सर तो we are looking at 150 CR to achieve in revenue. तो कुछ मुश्किल सवालों के बाद बड़े प्रोजेक्शंस बताए हैं तुषार ने, पर क्या हमारे एंजल्स उनकी बड़ी आस को मैच कर पाएंगे? आपकी आस कितनी है? सर 40 लाख रुपए अगेंस्ट 1% ऑफ द कंपनी. अच्छा. So तुषार, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर. बट मेरे को लगता है कि काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये. इस सेक्टर में मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट का भी काफ़ी रिस्क है. गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को चेंज करेगा तो कल को हो सकता है कि जो बड़ी कंपनीज है वो इस स्पेस में घुसे. I like you as an entrepreneur, but unfortunately given that the sector is very unorganized and there's a lot of government policy play here, I will have to opt out. मैं आपका एंजल नहीं बन सकता. कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच. मेरा ऐसा मानना है कि you have discovered something which is great. You are in recycling, environment friendly, refurbishing of tires, disorganized sector. You want to get it together. आपको organized sector में घुसना है. It's very nice business. Scrappage policy आ रहा है गवर्नमेंट का, बहुत सारे टायर्स रहेंगे रिफर्बिश करने को. पर मेरा ऐसा हेजिटेशन है द वे यू आर लुकिंग एट बिजनेस. आप कहीं से खरीद रहे हो, किसी से करवा रहे हो, कहीं बेच रहे हो, तो के वजह से इवन दो यू आर बिल्डिंग योर रेवेन्यू यू आर मेकिंग लॉस. मेरा ऐसा मानना है दैट दिस बिजनेस शुड बी डन बट इन अ डिफरेंट वे. फॉर दिस रीजन एंड दिस रीजन अलोन everything else is very good. I wish you all the best. पर मैं आपका एंजल नहीं बन सकता. पता है हर एक बिजनेस में ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं that you need to be best at, and वो ना कोई और आपसे ले नहीं सकता और कोई और इतने अच्छे से नहीं कर सकता जितना आप करो. मुझे लग रहा है कि हमने इसको कुछ ज़्यादा ही एसेट लाइट, केपेक्स लाइट और बहुत ही अलग ही लेवल पे प्लग एंड प्ले मॉडल बना लिया है. मुझे लगता है ये मॉडल इजीली रेप्लिकेट हो सकता है, इसलिए इट डज नॉट मेक अ गुड प्रोपोजिशन फॉर मी, and which is why unfortunately I'll not be able to become your angel, but I wish you all the best. ठीक है. Thank you so much. I'll tell you, I had come looking at your pitch deck. I was very keen to actually consider investing, but the only reason मैं आपका एंजल नहीं बन पाऊंगा, हालांकि इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है, आपका कैटेगरी में बहुत बड़ा मार्केट प्ले है. The only reason is because मैं ये जानना चाह रहा था कि आप ओल्ड सिस्टम को किस तरीके से नया कर रहे हो, और मुझे वो दिखा नहीं. तो माई ओनली एडवाइस इज दैट फोकस देयर. सिर्फ उस रीजन से मैं आपका एंजल नहीं बन रहा. थैंक यू सर. मैं ये समझता हूँ कि जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं बहुत ही यूनिक है, और मुझे लगता है इसका आगे आने वाले टाइम में पोटेंशियल बहुत बड़ा है. इवन मेरे कनेक्शंस भी कुछ ऐसे हैं जो टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसमें मैं आपकी मदद भी कर सकता हूँ उनके साथ में कनेक्शंस में. इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरी खुद की भी एक कंपनी है जिसका नाम है योलो बस. तो हमारी अभी 70 बसें चल रही है, बट हमारा एस्पिरेशन है इसको हम 500 बसेस पे लेके जाएंगे और द पीरियड ऑफ 1.5-2 years. तो मुझे लगता है कि ये मुझे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रही है और मुझे एक्साइट कर रही है इंडस्ट्री. बट वो ऑफर मेरा अकेले का नहीं है, बिकॉज अपर्णा भी मेरे साथ में उस ऑफर में जुड़ना चाहती है. और मैं ये बताती हूँ कि मैं क्यों जुड़ना चाहती हूँ. आई एम इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर स्पेस. ठीक है. And I know it's not easy, so I'm sure you have a very strong tech backend, okay? And sustainability, circular economy, that's the future. So we want to join together and present an offer. तो even as a matter of fact, I'm also a big supporter of sustainability. हमारी एक फाउंडेशन भी चलती है जिसका नाम है ईज मैटर फाउंडेशन, जिसमें हम काफ़ी जगह पर प्लांट्स, ट्रीज, स्पेसिफिकली सीड करते हैं नॉर्थ इंडिया में. बट मेरा ऑफर आपको ये रहेगा कि जो पहले आपकी वैल्यूएशन हुई थी, जो लास्ट राउंड हुआ था, उसी राउंड के ऊपर में वी वांटेड टू बी इन. हम कोई भी आपको हेयर कटिंग नहीं देना चाहते. हम उसी राउंड पे एंटर होना चाहते हैं, और उसी राउंड के ऊपर में हम 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए मेरी साइड से, 25 लाख रुपए अपर्णा की साइड से हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं. 4 एंजल्स के आउट होने के बावजूद आखिर तुषार को एक ऑफर मिल ही गया, पर उनके लिए ऑफर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है.
Sir, I would like to add something here. Thank you so much, first of all, both of you, to give this offer. But we are already in the process of raising fund, so this will be the part of the same round. So going below the valuation is difficult for us. किस valuation पे आपको round चल रहा है? Sir, same valuation जिस पे आपको हमने offer दिया, which is 40 CR. So that's the already we have. So this. But अभी वो start तो नहीं हुआ ना? वो already start भी हो चुका है, sir. Drawdown is in process. So this will be the same. The SHA will be common. ठीक है, we are in. कुछ मिलके बड़ा बनाते हैं, Thank कुछ you so उखाड़ते much, हैं. Angels. Thank you so much. And let's do it. करंट इन्वेस्टमेंट राउंड के चलते Thank you so much. तुषार अपनी ऑफर से कम नहीं जा पाए, पर उनके बिजनेस के पोटेंशियल को देख Very के excited. कुछ मिलके निकांत बड़ा एंड अपर्णा वर हैप्पी टू मैच हिज ऑफर। उन्हें रीग्रिप का फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है। So I'm feeling happy. So we got an offer. Two Angels has given the offer. तो बड़ा एक्साइटेड है एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्ड बिग थिंग्स टुगेदर। गोल ये है कि कंपनी बड़ी बनानी है और हमारा जो इस साल का एक बताया कि पॉजिटिव करना है हमें सबसे पहले। सो विल बी मेकिंग आवर एबिटा पॉजिटिव बाय दिस ईयर एंड, और इस साल के जो हमारे रेवेन्यू टारगेट्स हैं हम वो अचीव करेंगे और स्केल करेंगे, बड़ा बनाएंगे। अगर आप भी तुषार की कंपनी रीग्रिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन हेड ओवर टू आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.indianangels.com। इलादी, नीम और एलो से बना टैक इलादी 3-in-1 मैटिफाइंग सनस्क्रीन करे आपकी स्किन को प्राइम, प्रोटेक्ट और नरिश। Timeless weaves for timeless moments. Join the sari revolution, brought to the world by Shobhitam. हमारी अगली पिचर है सृष्टि शर्मा। वो पिच करेगी अपनी वुमेन सेफ्टी वेयरेबल ब्रांड शक्ति। उनका मानना है कि ऐसी डिवाइस की नीड मार्केट में ऑलरेडी है और उनकी टेक अप्रोच टू द प्रॉब्लम उन्हें यूनिक बनाती है। बहुत सारी चीज़ें चल रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड, थोड़ी सी नर्वस हूँ, थोड़ा सा डर लग रहा है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि एक्सपोजर मिल रहा है एंड एंजल्स की एक्सपर्टीज मिलेगी। सो एक्सपीरियंस या फंडिंग या दोनों कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मिलेगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। हेलो, Welcome. Hi. 2012 द निर्भया दिल्ली रेप केस, 2023 द मणिपुर रेप केस। नाम बदले, साल बदले, पर एक चीज जो नहीं बदली वो है घटिया घिनौने क्राइम्स। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इवन टुडे एवरी 16 minutes one Indian woman gets raped. And what's even worse is that 91% of such cases are not even officially reported. इसी समस्या को जड़ से समझने के बाद हमने आविष्कार किया है भारत की पहली विमेन क्राइम प्रिवेंटिव डिवाइस का, जिसका नाम है शक्ति। शक्ति आप एक रिस्ट बैंड या वॉच की तरह अपने रिस्ट पे बांध सकते हैं एंड इफ यू फील योर सेफ्टी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज, समबडी इज चेजिंग यू, देयर इज अ बटन अटैच्ड। जब आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो एक इलेक्ट्रिफिकेशन फीचर एक्टिव होता है, जिससे सामने वाला अटैकर जब भी इस डायल के फिजिकल कांटेक्ट में आता है, सो देयर नर्वस सिस्टम गोज डाउन फॉर ओनली 2 to 3 minutes. Don't worry, it's non-deadly. We just lower down their nervous system, make them in a subconscious or numb state so that the person actually gets time to escape from that situation or psychologically deal with it. And also automatically your live location goes to your friends and family. This can be charged like your cell phone, and we also have a provision of a regulator here. So depending on how serious the crime is, for example, आप मेट्रो में ट्रैवल करें, you don't have to make anybody numb for 2 to 3 minutes. आप बटन प्रेस करके लेवल 1 पे जाएंगे, it will just give them a scare away feeling. Versus अगर आप एक deserted cab में हैं और there's nobody to help, you can definitely go to level 3. All this is actually available into this wearable, which costs around 1900 rupees. And today I'm here to pitch Project Shakti to all the angels here, and I'm asking for 3 crores in exchange of 6% of my company equity. So angels, कौन देगा मेरा साथ इंडिया की हर लड़की को शक्ति बनाने के लिए जो वो ऑलरेडी है? एक कॉन्फिडेंट और अश्योर्ड पिच प्रोडक्ट के फीचर्स को हाईलाइट करके उनका प्रोडक्ट स्पॉटलाइट पे आ गया है। उनकी आस्क वैसे तो हाई है, पर हमारे एंजल्स अच्छे प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करने से कभी झिझकते नहीं हैं। First of all, I would want to welcome you to the Indian Angels.
Thank you. मैंने सुना आपके बारे में कि आप एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है, तो आप अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं? जी बिल्कुल। स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज से की है। आफ्टर दैट आई हैव डन इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ मैंने एक्चुअल साइंस के 3-4 पेपर्स क्लियर किए हैं। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं इंजीनियर बन लूं, बट ओनली फ्रॉम एन IIT, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, सो आई फेल्ड माई JEE एग्जाम एंड दैट वाज द टाइम दैट एक्सपेरिमेंटली आई स्टार्टेड विद अ सोशल प्रोजेक्ट नेम किलकारी। तो किलकारी में द किड्स दैट यू सी बेगिंग ऑन स्ट्रीट्स, हम उनको वो बेगिंग का काम छुड़वाकर schools में एडमिशन दिलाते थे under right to education, where every child of course has the right to study. After that I started another social project by the name of Rehmat. Manual scavenging is a very big problem, so we actually used to make safety kits for them and give it to them ताकि जब वो manhole में जाए तो उनकी death ना हो. After that one major venture that I was a part of was Binge Digital, again a food tech platform based in Gurgaon. After that I joined a healthcare company by the name Human Science. I was the co-founder there. I had some equity in the company. After that, I started with my gaming company, जिसका नाम Game है. That was an esports platform. This was again a partnership firm. First of all, what's your name? You did not tell your name. I'm so sorry. My name is Shrishti Sharma. सृष्टि, beautiful name. Yes. So सृष्टि, आप एक बहुत ही अर्ली एज से ऐसे टॉपिक्स में इन्वेस्टेड हो जो कि सोसाइटी को बेनिफिट करते हैं एक बहुत बड़े स्केल पे, तो आप वो एक मोटिवेशन क्या ट्रिगर क्या है वो बताइए. If you're privileged, then it is our responsibility to give back. Entrepreneurship for me honestly was very accidental, but I realized that this is something that gives me the kick. Can we look at your watches? Sure, sir. Can we look at the wearables? Srishti, these are wearables. Matlab, this is the design which is going to be, or are you looking at design? What is the stage of your company right now? Sure, sir. So I'll very quickly help. So this is the product where we have the technology sorted now. So we've actually done our sample surveys with more than 900 women, and हमें 98% जो feedback मिला है वो ये है that इसको और sleek बनाइए, इसको और beautiful बनाइए, ये पहनते हुए अच्छा लगना चाहिए, या इसको smart watch बना दीजिए. Then we actually took this feedback seriously. क्या इसको स्मार्ट वॉच बना दीजिए. जी. So can this become a feature in another smartwatch? So it can. I'll just add one point to it. We have a very clear-cut USP where we have a product that nobody else has, not just in India but globally. The moment we make it a smartwatch, we get in competition with the biggest smartwatch players that are already there. There is a brand on Flipkart called Met Brand that does smartwatches in addition to the features that you are talking about. Sure, ma'am. So if I talk about the feature when it comes to safety particularly, there have been a lot of brands जो SOS locations भेजती हैं as well. आपकी जो minor electrification feature है वो भी है उस watch में. I am very sure कि वो नहीं होगा because we have the patent for the same. We've actually been able to get to a component or to a feature that will lower down somebody's nervous system. AC/DC में इंसान चिपक जाता है. मार्केट में कहीं तो एग्जिस्ट करता होगा ना, ये चाइना में, US में. She said you have patent for this. Sir, we have applied for it. Within India, right? Within India, right? Because these products do exist. आपके प्रोडक्ट में एक शॉकिंग फीचर है जो आपने बताया है. जी. तो क्या आपका जो एंड यूजर है, क्या ये उसको भी हार्म कर सकता है? नहीं सर, इसमें एक प्रेशर कंट्रोलिंग IC है जो जिस वेयरर है उनके वाइटल्स को मेजर करती है. So they don't get electrified, only the person can get electrified. So let's say somebody innocent comes in contact. So there would be a circular button that has to be pressed twice. तो एक बारी आपका हाथ गलती से लग सकता है, but consciously 2 बारी गलती से नहीं लगता है. ये finished product आप क्यों नहीं लेके आए हो? I don't see the circular here. So your product is not ready yet. So right now as I speak to you, the technical team is already making it. एक अभी आपकी कंपनी में आप अकेले फाउंडर हो, कोई और है आपके साथ? So I'm the solo founder here, but And we are. how many people are there in your team? So we are 7 people in total. 7 people. हाँ जी. और उसमें R&D टीम जी. कितने लोगों की है आपकी? सर मेरे अलावा सारे टेक्निकल लोग. सारे हाँ जी, टेक्निकल लोग. टेक्निकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, सो ऑल और ऑफ देम. अभी कंपनी में अभी क्या स्टेज है कंपनी का? तो आने वाले 5 से 6 हफ्ते में जो आप फाइनल पतले वाले स्लिमर ये बैंड्स देख रहे हैं, इसके अंदर ये सारे फीचर्स एक्टिव होंगे विद द ICs एंड द रेगुलेटर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. What is going to be the cost of prototype of this? Sure. Right now the cost of making this is 800 rupees when I'm not going into bulk production. Bulk में सर मैं 400 और 300 भी कर सकती हूँ. That's the reason मैंने market rate अभी 1900 रखा है. Government को मैं 1091 पे pitch कर रही हूँ, which is also the women helpline number. 800 रुपए का आप बोल रहे हो, आपका कॉस्ट होगा भी जब तक मास पे नहीं होगा, और आप गवर्नमेंट को आप 1000 रुपए पे बोल रहे हो. जी. आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराओगे, I'm assuming आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग कभी नहीं करोगे. मेरा फैमिली बिजनेस है 30 सालों से, so we are into OEM and molding, plastic molding machines. So that gives me a
strong background. Will you prevent misuse? Is Sure, I'll come critical to that, sir. Misuse, as you very correctly said, तो ये product even it will be sold freely in the market, but ये ऐसे activate नहीं होगा. आपको फोन में एक ऐप डालनी पड़ेगी जिसमें proper KYC verification होगा. आधार लिंक OTP जाएगा. Then we have the data of verified users. Starting में एक picture भी click होगी जिस user ने उसको लिया है. And in case after that, if it's still misused, then at the CRM level we can block the device. इसका ना chances of misuse is very high, and what you told, KYC and everything is completely fine, that you guys are going to do KYC, all that. Once the product is out in the market, आपके हाथ से निकल गया है, आप क्या सिस्टम बनाओगे कि आप ये गलत हाथों में ना जाए? What if government insists on a license for Licensing, users? yeah. 5 से 10% ऐसा इंटेंशनल मिसयूज है. इंडिया जुगाड़ू लोग हैं, वो नकली आधार कार्ड भी लगा सकते हैं. दे कैन यूज इट. वो 10% मार्केट को सर देयर इज नो वे इन विच वी कैन स्टॉप. व्हाट वी हैव इन आवर हैंड्स इज कि हम मैक्सिमम टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज करके इसका मिसयूज कितना रोक पाए. ऑफ कोर्स व्हेन वी हैव मोर पीपल, वी हैव एक्सपर्टीज, वी हैव द राइट मेंटर्स टू हेल्प अस, वी आर ओपन टू डिस्कशंस. सृष्टि को बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस मिले. मिसयूज से लेके प्रोडक्ट डिजाइन पर सवाल उठे, पर अंकित को उनकी जिद और स्पिरिट पसंद आई है. वो अपना डिसीजन सुनाने के लिए तैयार है. आपका जो स्पिरिट है, आपकी जो जिद है, वो एक फाउंडर की जिद दिखाता है. ठीक है, तो सुपर प्राउड ऑफ दैट स्पिरिट. मी, श्रीधा, कुणाल, the 3 of us would want to make an offer to you. Many times you invest in the business, seeing the potential of the business, seeing what scale can it get, but sometimes you just have to go for the problem that one is trying to solve. I have a daughter. Today, wherever she goes, I have to almost send a babysitter with her. Your cause is very big. We got your ask, but you are at a very, very early stage right now. हम आपके एंजल बनना चाहते हैं only because आपकी जिद को हम लोगों ने देखा है. The problem that you're solving is real and it resonates with a lot of women in the country, and it is unfortunate that some men are also facing this problem. So TAG के अंडर हमारा एक इनिशिएटिव है, The Ayurveda Company के अंडर हमारा एक इनिशिएटिव है. We feel very strongly about this cause, and maybe that's the reason I'm getting so passionate while talking about it. We would like to make an offer. आपकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई आप मांग रहे हो. We think there is a lot that needs to be done, and we will have to work with you. We would like to make an offer for 15 lakhs plus 5 lakhs worth of services, that is 20 lakhs for 1 crore valuation. वैल्यूएशन को लेकर डिसएग्रीमेंट हो रही है. सृष्टि को लगता है कि उनकी ऑर्डर बुक उनकी आस्क को जस्टिफाई करता है. देखना यह होगा अगर सृष्टि को दूसरे एंजल से ऑफर मिलता है या नहीं. आपका पैशन और कमिटमेंट इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए सीरियसली बहुत बहुत इम्प्रेसिव है. तो हम तीनों मिलकर सबसे पहले आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे. See, I am a woman entrepreneur और मैं आपके फीलिंग्स को समझती हूँ, आपके कॉज को समझती हूँ. प्रोडक्ट में काफी हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, एनहांसमेंट्स लाने पड़ेंगे, एंड वी कैन ब्रिंग दैट लर्निंग टू यू. You are trying to combine technology with safety. With that in mind and your noble cause and your passion, I think we'd like to make an offer to you. 30%. आपका कंपनी अभी बहुत बेसिक स्टेज में है, but we think we can invest up to 10% for the company with a valuation of 6 crores. 6 crores. ऑफर्स को टेबल पे देख के सृष्टि ओवरवेल्म नहीं हुई है. बहुत रिस्पेक्टफुली उनको अंकित, श्रीधा और कुणाल के ऑफर को रिजेक्ट करना पड़ा, पर अब भी उनका ध्यान कंपनी की वैल्यूएशन और इक्विटी पे है. 20 lakhs each, 60 lakhs for 2% equity, 6% if that is a possibility. कि अभी फिलहाल में कंपनी बहुत नेसेंट स्टेज पे है. इस प्रोडक्ट के अंदर में अभी काम बहुत है. काम सर, हम बहुत कर रहे है, हैं. हमें भी बहुत मेहनत करनी होगी. Maybe we can all talk to him. क्या सृष्टि आज डील स्ट्राइक कर पाएगी या अपनी वैल्यूएशन प्रिजर्व करते करते उनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा? So we would like to increase our offer, seeing this, from 60 lakhs to 75 lakhs for the 9% equity that we were looking at. And if you need further funds, we can look at some debt of 25 lakhs extra. That's not a problem. ठीक है सर, it's a deal. Great. Thank you. I would want you to be my angels. Great. थैंक यू, Great. थैंक यू. आखिर में एक क्विक निगोशिएशन ने डील सील कर दी.
सृष्टि को मिले 3 एंजल्स और एंजल्स को मिली उनकी डिजायर्ड इक्विटी। I'm pretty satisfied. I needed money to actually now launch it as a D2C brand. I'm very glad with the traction that we have. तो traction को realize करने का time है, and this funds will actually help me to do that. So I'm very confident about it. That with this fund and with the expertise of the angel, I'll actually be able to scale it much faster. versus शायद मैं इसको 3-4 साल में कर पाती. Now I'm sure कि शायद 1 या 2 साल में मैं कर पाऊंगी. अगर आप भी सृष्टि की कंपनी शक्ति में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, then head over to our official website www.indianangels.com. टैग कुमकुमादी फेस वॉश करे डार्क स्पॉट्स को एंड gives your skin a radiant and youthful glow. Always young, always glowing. इंश्योरेंस देखो है तो सुकून है। बढ़ते इंडिया का हर सपना पूरा कर रहे हैं हम। इंश्योरेंस देखो, बढ़ते इंडिया का भरोसा। सोमानी टाइल स्टाइल और क्वालिटी वर्ल्ड क्लास, पर जमीन से जुड़ा। बिल्कुल भाई की तरह। करेक्ट। सोमानी टाइल्स, जमीन से जुड़े। तो आज के एपिसोड के लिए उतना ही। तीनों पिक्चर्स को इन्वेस्टमेंट मिली और एंजल्स भी उनके प्रोडक्ट्स को लेके काफी एक्साइटेड है। मिलिए हमसे अगले हफ्ते जब हमारे पास 3 नई कंपनीज होंगी। See you on the next episode of Indian Angels.